one of the first official victories have taken place for the wrestlers, and also remember, this is in the backdrop of the big dangal that has taken place. Vinod Tomar, Assistant Secretary of the Wrestling Federation of India, has been suspended by the Sports Ministry. Assistant Secretary Vinod Tomar of the Wrestling Federation of India has been officially suspended by the ministry, and India Today has accessed that suspension letter. Sports Ministry has said Tomar's presence in the Wrestling Federation of India will be detrimental to the high priority discipline that has managed. This is a Mega India Today news break. We have been tracking constantly what the wrestlers have been demanding, but this is the first big official suspension that has come. This is the Assistant Secretary of the Wrestling Federation of India, Vinod Tomar, and in an official letter, India Today has access to a copy of that, saying that the ministry has taken note of the reports about the functioning of the Wrestling Federation of India, including the role of Shri Vinod Tomar, and has the reasons to believe that his continued presence will be detrimental to the development of this high priority discipline. And therefore now the Sports Authority of India is directed to convey this decision to the Wrestling Federation. This is big, but of course remember, the main allegations are directly against the boss of the federation. His resignation, action against him, even arrest is being demanded by the wrestlers. And also importantly, they had said about the federation needs to be revamped. Now earlier today, Vinod Tomar had defended the wrestling body and the federation president Brij Bhushan, calling all the allegations baseless. Let's listen in to now first what he had said. आरोप तो निराधार रहेंगे, ऐसा कुछ है नहीं, और 3-4 दिन हो गए उन्होंने कोई एविडेंस भी नहीं दी अभी तक। तो मैं भी 12 साल से इनसे जुड़ा हूं, मैं मेरे को आज तक तो ऐसा कुछ आरोप तो निराधार रहेंगे, ऐसा कुछ है नहीं, और 3-4 दिन हो गए उन्होंने कोई एविडेंस भी नहीं दी अभी तक। तो मैं भी 12 साल से इनसे जुड़ा हूं, मैं मेरे को आज तक तो ऐसा कुछ। Right, so that's the big news coming in. It's the first official suspension of Vinod Tomar, Assistant Secretary of the Wrestling Federation of India, saying that we have taken note of some of the reports that have surfaced, and it will be now, according to the Sports Ministry, that the ministry has the reasons to believe that Vinod Tomar's continued presence will be detrimental to the development of this high priority discipline. Let's go across now to Himanshu Mishra for getting us this copy and the suspension that has taken place. Himanshu, क्यों विनोद तोमर का सस्पेंशन होता है और ब्रिज भूषण का नहीं? ये क्यों स्टेप लिया है और क्या मैसेज इससे सरकार देना चाह रही है? देखिए, दो चीज हैं। जो विनोद तोमर है वो साई के द्वारा अपॉइंटेड है, यानी कि सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए वहां पे रिप्रेजेंटेटिव है, और उनके खिलाफ तमाम शिकायतें थी और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की भी जो बातें आई हैं, उस पर कहीं ना कहीं विनोद तोमर को जो है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर खिलाड़ियों ने कहा कि उनका बिहेव भी ठीक नहीं है, और जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं, सारी कुछ जो कल बातें हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं विनोद तोमर जो है वो सबसे बड़े कल्पिट के तौर पे आए हैं। उनका ये कहना है कि विनोद तोमर का जो बिहेव है खिलाड़ियों के साथ, रेसलर्स के साथ, वो बहुत अच्छा नहीं है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि विनोद तोमर को तो सबसे पहले हटाया जाए। और इसीलिए आप देखिए कि कल जो है बातचीत हुई फाइनल राउंड की, और उसके बाद सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी मंत्रालय के द्वारा, और उसमें एक महिला एथलीट्स को ही जो है मेंबर रखा जाएगा। 3 सदस्यीय मिनिमम कमेटी होगी। कमेटी का गठन से पहले ही जो है विनोद तोमर के ऊपर सरकार ने सबसे पहले एक्शन लिया और विनोद तोमर को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पूजा एक चीज तो देखने में आ रही है कि विनोद तोमर को लेकर जिस तरीके की शिकायतें थी, नाराजगी थी, उसको खेल मंत्रालय ने भी समझा है, यानी कि अब खेल मंत्रालय इस पर कहीं चुप नहीं रहने वाला, और कमेटी बनाने से पहले अगर एक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को ये लगेगा जो उनकी मांगे थी, जो वो चाहते थे, कहीं ना कहीं वो सरकार खिलाड़ियों के साथ नजर आ रही है। ब्रिज भूषण शरण सिंह जो है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो इलेक्ट हुए हैं, उनको हटाना जो है वो खेल मंत्रालय के अंडर नहीं है, लेकिन उनको स्टेप डाउन कराया गया जब तक कमेटी जो है
अपनी रिपोर्ट नहीं देगी। डे टू डे हिमांशु, एक्टिविटी इसको जो है कैसे एक महीने देखा के लिए जो जाए? है, क्योंकि ये पहली बार हुआ था, हिस्टोरिक है कि इतने बड़े दर्जे पे जिन्होंने मेडल जीते हैं वो रेसलर्स आके बैठ जाते हैं जंतर मंतर पे और कहते हैं ये एलिगेशंस हैं जो अभी प्रूव करनी होंगी, वो इन्वेस्टिगेशन चलेगी, लेकिन फिर भी ये बात कहना और सरकार ने इग्नोर नहीं किया। कुछ ही दिनों में कमेटी भी बैठ जाती है और फिर सस्पेंशन भी होने लगते हैं। तो क्या हम ये भी कहें कि सरकार को भी ये रियलाइज हो गया, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, कि ये कंट्रोवर्सी, ये धरना आप इग्नोर नहीं कर सकते? देखिए बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अगर खिलाड़ियों ने जो शिकायत की है, उन शिकायतों में बृजभूषण शरण सिंह का नाम है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, वो इलेक्शन जीत कर आए हैं, एक ऑटोनोमस बॉडी से के अध्यक्ष हैं, और उनको हटाना नहीं हटाना ये प्रोविगेटिव मंत्रालय के पास नहीं है। लेकिन उनको कहा गया है कि कमेटी जो बनाई जाएगी वो 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, तब तक आप डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। वो कमेटी ही चलाएगी और कमेटी ही इन्वेस्टिगेट करेगी, यानी कि कमेटी की रिपोर्ट आने तक जो है वो बृजभूषण शरण सिंह जो है कोई भी फैसला वो नहीं ले सकते हैं। लेकिन सरकार ने जो उनके नुमाइंदे थे, जिनके खिलाफ शिकायत की जा रही थी, विनोद तोमर जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है, उनको हटा दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये लगता है कि अगर उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले उनको सस्पेंड किया। बाकी की कार्रवाई होगी, कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, जांच होगी, लेकिन जिसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे बृजभूषण के अलावा, उनको लेकर जो है कहीं ना कहीं विनोद Himanshu, तोमर का बड़ा नाम step है ये. और And what Himanshu is saying is important. Remember, yes, direct allegations are against Brijbhushan Singh, but he's also an elected member, while Vinod Tomar is he's an official, he's via the Sports Authority of India, and he was actually taking care of the day-to-day affairs. So that first suspension has taken place, while Brijbhushan Singh has also been asked to step down.